Hello class 4, good morning. So this is your moral science class and I am your moral science teacher Chanda madam. So children, open page number 17, 1717. There you will get this page. Okay. So this chapter number 4 is about the lazy zebra. There, there was a lazy zebra. Lazy means you know na. Lazy means alsi. Zebra means that is a wild animal. Okay. So in this lesson, the values which you are going to learn is punctuality. Punctuality means you should do thing in time. Okay. Everything you must do in timely. Okay. At the time of studying you should study, at the time of sleeping you should do you should sleep, at the time of walking you should walk, at the time of having your lunch you have to have your lunch, at the time of bathing you should daily do the same thing at the same time. That is called punctuality. Okay, in right time you should do the right thing. Okay, a proper utilization means सही तरीक़ा से उसको यूटिलाइज करना, कोई भी काम को, कोई भी चीज़ को सही तरीक़ा से उसको उपयोग में लाना, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर यूटिलाइजेशन. ओके, जैसे आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो तो उसको सही उपयोग करना चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मीन्स समय का सदुपयोग करना चाहिए. समय को जो भी टाइम में राइट थिंग करना चाहिए. ओके, आप ब्रेकफास्ट खाने के समय में लंच नहीं करना चाहिए, सोने के समय पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने के समय सोना नहीं चाहिए. सो यू शुड यूज एवरी टाइम, यू शुड यूज ए सिंगल टाइम इन ए प्रॉपर वे. ओके, तो समय का आपको क्या करना चाहिए? उस समय को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए. सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स आप अपने में सेल्फ क्या है? डिसिप्लिन होना चाहिए. डिसिप्लिन मीन्स आपको अपने आप पे अनुशासन करना चाहिए. आपको कोई बोलना ना पड़े कि आपको पढ़ने के टाइम पर पढ़िए, लिखने के टाइम पर लिखिए, आप खेलने के टाइम पे खेलने जाइए. तो आपको अपने आप को क्या करना है? सेल्फ डिसिप्लिन करना है, अपने आप को अनुशासित करना है. ओके, आपको राइट टाइम पर सब चीज़ करोगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यू आर सेल्फ डिसिप्लिन. मीन्स आप सोने के समय सोएंगे, पढ़ने के समय पढ़ेंगे, खेलने के समय खेलेंगे. द टाइम ऑफ डूइंग वर्क यू शुड डू वर्क, द टाइम ऑफ स्टडी टाइम you should do study, at the time of playing time you should play. Okay, in that way if you do everything in a right time, that means you are doing without the instruction of other. If you do all this thing in a proper time, in a right time, that is called self discipline. Okay, now let me start the lesson. Can you spot the animal in the picture below? Here is given some animals. Okay, so you have to tell the animals name. This is what is this? This is a python. Okay, I think this is a python, big python. Big snakes are called python. And this is a frog, and this is a tiger. Okay, now use a color pencil to circle the animal. So you have to, with the color pencil you have to circle the animal like this way. Okay, कलर पेंसिल लेके आप इसको सर्कल करेंगे. नाउ लेट मी स्टार्ट द लेसन. लॉन्ग एगो इन द ग्रेट एनिमल वर्ल्ड देयर लिव अ horse family. So it's a story. Long ago there was a great animal world and there lived a horse family. In that animal world there lived a horse family. There were three brothers called Stellon, Mule and Zebra. So in that horse family there were three brothers whose name was, one was Stellon and one was Mule and another was Zebra. Okay, so Stellon was a wild creature. He was a wild creature. He was a wild creature and he loved nature and fresh air. So he loved wild creature means forest animal. Okay, he loved wild things means he loved nature and fresh air and
वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठ जाता था। वो ये जो स्टेलन है वो सुबह जल्दी उठ जाता था। उसको नेचर पसंद था, प्रकृति पसंद था, स्वच्छ हवा पसंद था और सुबह जल्दी उठ जाता था। नोन टू बी रेस्टलेस, ही वुड नेवर स्टैंड स्टिल फॉर लॉन्ग एंड ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग। वो क्या था, बहुत वो हमेशा क्या रहता, बेचैन रहता था। वो हर चीज़ कभी एक जगह खड़ा नहीं रहता था। वो क्या है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता था। वो हमेशा भागते रहता था, दौड़ते रहता था और वो एक जगह स्थिर नहीं रहता था। ठीक है, वो हमेशा क्या रहता था, हर चीज़ में पार्टिसिपेट मीन्स वो एक्टिव था, बहुत एक्टिव था। ही वॉज वेरी एक्टिव फेलो। ओके, द मुले दो नॉट ए वाइल्ड एज स्टेलन वॉज नोन टू बी स्टेबन बट could be pursued to do hard work। तो मूल्य जो था वो क्या था, इसकी तरह वाइल्ड नहीं था, इसकी तरह क्या नहीं था, इतना ज़्यादा वो नहीं थी, वाइल्ड नहीं था, लेकिन वो स्टेबन था। वो क्या था, जिद्दी था। और उसको क्या है, अगर उसको परस्यू किया जाए, उसको अगर समझाया जाए तो वो क्या करता था, हार्ड वर्किंग करता था, वो मेहनत करता है। लेकिन जेब्रा द यंगेस्ट ऑफ द थ्री वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर्स। लेकिन जो जेब्रा था वो दोनों भाइयों से बहुत अलग था। ओके, तो वो हाउ वाज ही डिड नॉट वर्क लाइक द मूल एंड नॉर वाज ही एक्टिव लाइक स्टेलन। न तो वो स्टेलन की तरह एक्टिव था और न मूल की तरह वो क्या था, हार्ड वर्किंग था, वो मेहनत करने वाला था। वो क्या था, ऑल ही डिड वाज स्विंग हिज टेल एंड लेस अराउंड द हाउस। वो क्या करता, अपना पूंछ को सिर्फ हिलाते रहता था और पूंछ को अपने आप इधर उधर स्विंगिंग करता था और लेजी लेजी की तरह घर में क्या करता था, चारों तरफ घूमते रहता था। इन द मॉर्निंग व्हेन हिज ब्रदर वुड गो आउट फॉर ए रन, जेब्रा कुड बी सीन वेयरिंग हिज नाइट पायजामास। और जब सुबह सुबह उनका दो भाई क्या करते थे, रनिंग के लिए जाते थे, लेकिन जेब्रा क्या करता था, वो अपना उसको नाइट पैजामा में, नाइट ड्रेस में देखा जाता था। ही वुड रिफ्यूज टू ज्वाइन देम। वो बोलता था नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं उनके साथ। उनका भाई बोलते थे, स्टेलन और मूल बोलते थे कि लेट्स गो, लेट्स रन, तो वो रिफ्यूज कर देता था, वो उसको मना कर देता था। एट नाइट व्हेन स्टेलन एंड मूल वुड गो फॉर एन आफ्टर डिनर वॉक, रात को जब खाना खाने के बाद में मूल और स्टेलन डिनर वॉक मतलब रात का भोजन खाने के बाद में वो लोग वॉकिंग के लिए जाते थे, तो जेब्रा वुड रिफ्यूज टू ज्वाइन देम। जेब्रा बोलता था कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट फीलिंग लाइक गो फॉर ए डिनर वॉक। ओके, एंड से दैट ही वॉज फीलिंग स्लीपी। तो वो कहता था कि मेरे को नींद आ रही है। ही वुड क्विकली चेंज इनटू हिज पायजामास एंड गो टू स्लीप। वो नाइट ड्रेस, अपना नाइट पैजामा पहन लेता था और सोने चला जाता था। जेब्रा मोर और लेस लिव इन हिज पैजामास। तो जेब्रा उसको ज़्यादातर पैजामा नाइट ड्रेस में देखा जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिल्पी था और बहुत ज़्यादा सोते रहता था वो, और ही वॉज वेरी लेजी। हाउएवर एज ही वॉज द youngest, his brother never said anything to him। क्योंकि जो छोटा होता घर में उसको सब ज़्यादा प्यार करते थे, और बड़े भैया लोग स्टेलन एंड मूल never say anything to him because he was the youngest among them। okay, he become lazier with each passing day। तो धीरे धीरे करके वो लोग क्या हो, बड़े होते गए और हर दिन वो क्या है, और भी लेजियर और भी लेजियर और भी लेजियर होते गए। हु द जेब्रा। ओके, वन डे द किंग ऑफ द एनिमल वर्ल्ड कॉल एन अर्ली मॉर्निंग। तो जंगल का एक दिन जंगल का राजा ने सबको बुलाया। ओके, सुबह सुबह सबको बुलाया कि हमारा इसमें हाजिर हो, दरबार में हाजिर हो। इट वॉज टू डिसाइड हाउ द किंगडम शुड बी रूल। तो राजा को सबका सलाह लेना था कि किस तरह से हम ये एनिमल किंगडम को, एनिमल राज्य को हम चलाए, जिससे कि सब जानवर सुखी रहे।
ऑल द एनिमल्स वे टू हैव ए से इन द डिसीजन। इसमें सब जानवर को कुछ ना कुछ बोलना था, अपना डिसीजन देना था, अपना ओपिनियन देना था, अपना विचार देना था कि किस तरह से हाउ टू रूल द एनिमल किंगडम सो दैट इट रूल स्मूथली एंड एवरीबडी विल बेनिफिट विथ द वाइज डिसीजन। ओके, जिससे कि सभी उनका जो अच्छा विचार से, अच्छा विजडम भरा विचार से, बुद्धिमत्ता भरा विचार से एनिमल किंगडम को अच्छी तरह रन किया जाए, जिससे सबका भला हो। द हॉर्स फैमिली वाज ऑल्सो कॉल्ड, जो ये घोड़ा का परिवार को भी, जिसमें स्टेलॉन, मूल एंड जेब्रा था, उसको भी बुलाया गया। किसने बुलाया? शेर ने बुलाया। हु कॉल्ड देम? द किंग लायन कॉल देम। ओके, द किंग ऑफ द जंगल लायन कॉल देम ऑल। स्टेलन वेक अप अर्लियर देन यूजुअल। स्टेलन तो जब सुना, उसने ये हुक्म सुना तो स्टेलन सुबह सुबह जग गया। वेंट फॉर हिज मॉर्निंग रन एंड वाज रेडी इन टाइम फॉर मीटिंग। तो मीटिंग, राजा ने कहा था, द लायन सेड दैट एट 10 o'clock और 7 o'clock और 5 o'clock you all of the animals should gather in this particular प्लेस। ओके, उन्होंने कहा था कि ये जगह में सब हमारा मीटिंग होगा, इसमें ही सब लोग जमा होना है, यहाँ पर गैदरिंग करना है। तो मूल टू वेक अप अर्ली, मूल भी सुबह उठ गया। डिड ऑल हिज वर्क एंड गोट रेडी फॉर मीटिंग, उसने अपना सब काम कर लिया और मीटिंग के लिए रेडी हो गया। जेब्रा रिमाइन स्लीपिंग इन हिज पायजामास, जेब्रा अपना पायजामा में सोते रह गया। मूल नॉल जेब्रा, मूल ने जेब्रा को झकझकाया, उसको उठाने की कोशिश की। स्टेलन पोक हिम, स्टेलन ने उसको क्या क्या उठाने की कोशिश किया। बट ही रिफ्यूज टू गेट अप, लेकिन वो उठने के लिए उसने मना कर दिया। ओके, देन आफ्टर दैट सी इन पेज नंबर दिस नेक्स्ट पेज, दे लेट हिम एट होम एंड वेंट अप टू द मीटिंग। तो उसने जब उन्होंने दे ट्राइड देयर बेस्ट टू वेक हिम अप बट जेब्रा रिफ्यूज टू वेक अप। ओके, ही वॉज फीलिंग वेरी लेजी, उसने मना कर दिया तो उसको वो घर में छोड़ के चला गया। श्योर इनफ द लायन किंग नोटिस जेब्रा अब्सेंस, तो राजा था वो, उसने क्या किया, नोटिस किया कि जेब्रा, हॉर्स फैमिली में जेब्रा एब्सेंट है, जेब्रा वहाँ पर उपस्थित नहीं है। ही वॉज एंग्री बट बीइंग डिसोबेड, वो उसको लगा कि उसने उसका आज्ञा नहीं माना, जेब्रा ने आज्ञा नहीं माना है। ही डिमांडेड दैट जेब्रा बी ब्रोट टू हिम इमीडिएटली, तो उन्होंने अपना सैनिक को बोला कि जाके जेब्रा को अभी पकड़ के लेके आओ। स्टेलन रन होम एज फास्ट एज ही कुड, वक अप जेब्रा एंड टोल्ड हिम दैट द किंग हैड ऑर्डर हिज इमीडिएट प्रेजेंस एट द मीटिंग। तो स्टेलन दौड़ के घर में गया और जेब्रा को कहा कि तुमको राजा अभी देखना चाहता है, अभी जल्दी प्रेजेंस हो, राजा बहुत गुस्सा है, तुम आपने मीटिंग में अटेंड नहीं किया। पोर जेब्रा वाज सो स्केयर्ड दैट ही रैन एज ही हैड नेवर रन बिफोर एंड इवन फॉरगेट टू रिमूव हिज पायजामास। तो ये जो जेब्रा है बहुत घबरा गया, वो घबरा गया और उसने इतना तेज दौड़ा कि जिंदगी में इसने कभी इतना तेज नहीं दौड़ा था। और वो अपना पैजामा भी क्या है, खोलना भूल गया, नाइट ड्रेस में था वो, पैजामा खोलना भूल गया। द किंग सीइंग जेब्रा इन हिज पैजामा गॉट इवन मोर एंग्री, तो राजा ने जब उसको पैजामा नाइट ड्रेस में देखा, किंग लायन व्हेन ही सो द जेब्रा इन हिज नाइट ड्रेस इन पैजामास ही गॉट मोर एंग्री। ओके, दिस वाज मोर देन व्हाट ही कुड टॉलरेट, तो ये था कि राजा को उसका टॉलरेट नहीं हो रहा था। ही कर्स हिम एंड सेड, उसने उसको गाली दिया और कहा, फॉर डिलेइंग द मीटिंग एंड डेयरिंग टू कम बिफोर मी इन योर पैजामा यू विल नाउ नेवर बी एबल टू रिमूव देम। तो राजा ने कहा कि तुमने मेरा आगे का पालन नहीं किया और फिर मेरे सामने पायजामा नाइट ड्रेस लगा के उपस्थित हुआ, इसीलिए तुमको क्या है, इसको अभी से ज़िंदगी भर कभी भी रिमूव नहीं कर सकोगी। तो योर चिल्ड्रन टू विल हैव टू वेयर देम फॉर एवर, तो आपका बच्चे जो होंगे वो भी ज़िंदगी भर क्या करेंगे, पैजामा को, नाइट ड्रेस वाला पैजामा को, सूट को पहनते रहेंगे। श्योर इनफ द लायन वर्ड्स कम ट्रू एंड जेब्रा कुड नेवर
रिमूव हिज पैजामा। तो जेब्रा को आप देखते हैं उसमें स्ट्राइप स्ट्राइप होती है, पैजामा लगाया जैसा होता है। तो ये स्टोरी है द हाउ द जेब्रा लुक लाइक दिस ना। तो उसने पैजामा अभी तक खोल नहीं पाया। उसका जितने भी बच्चा जन्म लेते हैं दोज हिज यंग वन ऑल्सो दे लुक लाइक that they are wearing the night dress, the pajamas. Okay, in fact till the day zebra wear pajama, उसके बाद से जेब्रा लोग क्या पहन रहे हैं, पैजामा पहन रहे हैं, क्योंकि they disobey the king lion. Okay, so this is the story. I think you enjoy the story. Okay, now let's this take the correct answer. इसमें से जो सही आंसर है उसको क्या करो, करेक्ट करो. Here is given 3 options. Okay, now who was the laziest in the horse family? Horse family में सबसे लेजी कौन था, स्टेलन, मूल और जेब्रा. जेब्रा was the laziest one. Here you have to tick mark. Who noticed जेब्रा's absence at the meeting? जेब्रा मीटिंग जो बुलाया था उसमें जेब्रा नहीं आया बोल के किसने नोटिस किया, किसने पता मीन्स नोटिस किया? तो द लायन, द मूल और द फॉक्स. किसने नोटिस किया? लायन ने नोटिस किया कि फ्रॉम द हॉर्स फैमिली द जेब्रा वाज एब्सेंट. ओके, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. हाउ वाज जेब्रा डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर? जेब्रा वाज वेरी लेजी. ओके, Zebra was always found to be in his pajama. Why? Because he was very lazy and always want to sleep. Okay, so he was always found to be in his pajamas. So I am going to give the answer in your WhatsApp. Okay, now next is page number, this is your page number 20. Okay, so let's see what is your question number C. What would you do in this situation? Tick 1. ऐसे हालात में आप क्या करोगे, आप बताइए. यहाँ पर ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन आर गिवन हियर. इट इज़ योर समर वेकेशन. यह आपका समर वेकेशन चल रहा है. योर मदर वांट यू टू हेल्प हर विद द हाउस होल्ड वर्क. तो आपका मम्मी चाहती है कि आप घर के काम में उनको मदद करें. आप क्या करोगे? प्रोमिस टू हेल्प हर सम अदर डे एंड गो बैक टू स्लीप. आप बोलेंगे मम्मी मेरे को बहुत नींद आ रही, मैं किसी दूसरा दिन आपका मदद करूँगा. और बी आर हैप्पी टू हेल्प हर, और आप उनको मदद करने में आपको खुशी महसूस होगी. और डोंट रिफ्यूज हर बट यू डोंट हेल्प हर द वे शी वांट यू टू. तो आप उनको क्या करेंगे, रिफ्यूज नहीं कर पा रहे, आप उनको मना नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस तरह से मम्मी चाहते थे कि आप उनका मदद करें, आप उस तरह से मदद नहीं करें. विच वन इज द राइट वन? बी इज द राइट वन. आर हैप्पी टू हेल्प हर, आप उनको मदद करने में खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि कोई भी काम हो खुशी खुशी करने से क्या होती है, यू मेक योर मम्मा also happier and you to enjoy doing that work. Okay, so number 2 is you have joined a swimming club. आपने स्विमिंग क्लब में ज्वाइन किया जहाँ पर स्विमिंग सीखते हैं. द क्लासेस आर हेल्ड अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह स्विमिंग क्लास चलती है जहाँ पर आपको स्विमिंग सूट लगा के आपको स्विमिंग यू कैन प्रैक्टिस द स्विमिंग. ओके, सो यू हैव टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आप तक क्या करें, अटेंड द क्लास हैप्पीली. आप उस क्लास को खुशी खुशी अटेंड करोगे. और अटेंड द क्लासेस बट कंप्लेन अबाउट देम टू योर फ्रेंड. तो आप क्या करोगे, स्विमिंग क्लास अटेंड करोगे, लेकिन आप अपने इसके बारे में आप अपना दोस्त के साथ कंप्लेन करोगे कि इतना अर्ली क्यों हमको क्या कर रहा है, स्विमिंग करा रहे. और नंबर सी, मेक एक्सक्यूजेज टू स्किप द क्लास. तो आप बोलोगे नहीं मेरे को सर दर्द है या कुछ है, आप एक्सक्यूजेज ढूंढोगे. तो व्हाट यू विल डू, यू विल अटेंड द क्लास हैप्पीली. आप खुशी खुशी उस क्लास का हैप्पीली करोगे. इफ यू वांट टू लर्न स्विमिंग देन यू हैव टू ज्वाइन द क्लास. ओके, you should happily join the class. Now number 3 is the teacher has given you a project. टीचर ने एक आपको प्रोजेक्ट बनाने दिया. You have to submit it after
अ मंथ, आपको एक महीना दिया कि ये टॉपिक दिया, इस प्रोजेक्ट को बनाओ, और आप उसको एक आफ्टर 1 मंथ आपको यू हैव टू सबमिट दैट प्रोजेक्ट। उसको आपको एक महीना बाद में सबमिट करना है। तो व्हाट यू विल डू इट ऑन द लास्ट डे। आप लास्ट दिन में करेगा महीना के, जैसे डेट 1 हो गया, डेट 1 में आप वेटिंग करते रहोगे, लेजी करते रहोगे लास्ट 31st में आप करोगे। और स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड सबमिट इट ऑन टाइम। आप शुरू जिस दिन आपको टीचर बताएंगे उसी दिन आप स्टार्ट करोगे, और आप क्या करोगे, जिस डेट में सर ने बोला है उसी डेट में आप क्या करोगे, उसको सबमिट कर देंगे, जमा कर देंगे। और डू नथिंग फॉर ए मंथ एंड देन आस्क द टीचर टू सम आस्क योर टीचर फॉर सम मोर टाइम। तो आप लेजी करते रहोगे, यू फील लेजी एंड यू about to do that one, and in the last day when teacher asks you where is the project, then you make some excuse and say, sir क्या है, give me some more time, okay, I have not made the project, so please give me some more time। तो आप बोलोगे कि मेरे को कुछ बहाना बनाओगे, एक्सक्यूजेज बनाओगे, और आप टीचर को कहोगे कि मेरे को और कुछ समय दीजिए। तो वो विच वन इज द बेस्ट वन? नंबर बी, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड सबमिट इट ऑन टाइम। आप शुरू से ही उसको स्टार्ट करोगे और टाइम में उसको सबमिट करेंगे। ओके, द गुड स्टूडेंट, ओबीडियंट स्टूडेंट, दे डू लाइक दिस। ओके, if you want to be a good student and a brilliant student, you must follow this one. Okay, so you must give up lazy habit. Now children, there is one more story. Read the story of the grasshopper and the ant. यहाँ पर एक कहानी है ग्रासहोपर। ग्रासहोपर इज ऑल्सो एन इंसेक्ट एंड एंट इज ऑल्सो इंसेक्ट। ओके, ग्रासहोपर मीन्स टिड्डा, एंट मीन्स चिट्टी। चिट्टी और टिड्डा का कहानी है। लेट मी रीड द स्टोरी एंड एक्सप्लेन यू इन हिंदी। ओके, इन ए फील्ड देयर लिव ए ग्रासहोपर एंड एंट। एक खेत में एक ग्रासहोपर टिड्डा रहता था और एक चींटी रहता था। द ग्रासहोपर स्पेंड हिज टाइम डांसिंग एंड सिंगिंग। ग्रासहोपर जो था, टिड्डा था, वो हमेशा डांस करते रहता था, नाचते रहता था, गाना गाते रहता था। द एंट ऑन द अदर हैंड वेंट अबाउट हर वर्क स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर। तो एंट क्या करता था, वो दिन भर काम करता था और भोजन इकट्ठा करता था। किसके लिए? सर्दियों के लिए। वाई डू यू वर्क सो हार्ड। तो ये टिड्डा कहता था, तुम क्यों इतना ज़्यादा मेहनत करती हो? कम एंड हैव फन विथ मी। आप मेरे साथ आओ, डांस करो, सिंग सॉन्ग एंड डांस एंड हैव फन विथ मी, और मेरे साथ मस्ती करो। सेड द ग्रासहोपर। ग्रासहोपर ने कहा। देन व्हाट हैपेंड? नो, आई कांट हैव फन, नो नो आई कैंट हैव फन लेटर। तो बोला, नहीं, मैं क्या नहीं कर सकता, मस्ती नहीं कर सकता। फॉर नाउ आई मस्ट स्टोर फूड फॉर विंटर। क्योंकि मेरे को सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना है। सेड द एंड। चींटी ने कहा। एंड आई एडवाइज यू टू डू द सेम। मैं आपको भी सलाह देता हूँ कि सर्दी आने वाली है, उस समय पेड़ पत्ते सब गिर जाएंगे, पेड़ के पत्ते वगैरह गिर जाएंगे, ठंडा रहेगी, और क्या है, खाना नहीं मिलेगा। तो आप भी क्या करो, खाना इकट्ठा करो। विंटर इज स्टिल वेरी फार। तो इसने कहा, टिड्डा ने कहा कि अभी सर्दियाँ बहुत दूर है। सेड द ग्रासहोपर। ग्रासहोपर ने कहा, लाफिंग एट हर। उसने उसके ऊपर हंसते हुए कहा कि अभी सर्दियाँ बहुत दूर है। बट द एंट कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। लेकिन एंट चींटी हमेशा मेहनत करते, उसने उसका बात को अनसुनी कर दिया। ही दिस एंट डिड नॉट हियर हर the does na this grasshopper. What he advised him, he was calling him, come and have fun with me na, but this and said that winter is approaching, so I have to collect food for winter. Okay, so
this grasshopper was making fun of her, but she did not listen to him, and she continued on her work. Okay, she continued doing her own work. And when winter came, the grasshopper had no food for himself. तो जब सर्दी आई तो टिड्डा के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, बिकॉज ही डिडंट स्टोर एनीथिंग. ही वेंट टू द एंट हाउस एंड आस्क्ड टू समथिंग टू इट. तो उसने उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पत्ते वत्ते सब गिर गए थे. तो टिड्डा का खाना क्या, व्हाट इज द फूड ऑफ द टिड्डास, दिस ग्रासहॉपर, दे eat grasses, they eat leaves of the trees, but in winter there was no any food, any leaves remain in the trees. Okay, so he was feeling very hungry and he went to this ant house and asked him some food. Okay, the ant gave him food and told the grasshopper, ant ने उसको कुछ खाना दिया और कहा, due to your laziness, आपका आलसी के कारण से, you don't have food to eat, आपको आपने लेजी किया इसलिए आपके पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है. Had you stored some food for yourself, you could have also enjoyed the winter. यदि आपने कुछ खाना इकट्ठा किया होता तो अभी आप विंटर का एंजॉय कर रहा होता. आप घर के अंदर बैठ बैठ के खाना खा रहे होते हैं. ओके, सो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, what lesson you have learned from this story? Moral lesson that we should not be lazy. Okay, so children, the next one is circle the word you would use to describe grasshopper. grasshopper क्या था उसके लिए आप यूज करो. कनिंग था, धूर्त था, लेजी था, आलसी था, हार्ड वर्किंग था, मेहनती था. तो द ग्रासहॉपर वाज लेजी. ओके, इज इट ओके टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड सी अदर वर्क हार्ड. क्या ये अच्छा है कि आप कोई आदमी काम कर रहा है और आप रिलैक्स होके आप आराम से बैठ के उसको देखते रहे? तो ये दिस इज नॉट ओके. ओके, वी शुड ऑल्सो डू हार्ड वर्क. Had you been the ant, would you have helped the grasshopper? अगर यदि आप चींटी होते तो क्या आप ग्रासहॉपर की मदद करते? डिस्कस विथ योर पार्टनर. अपने दोस्त के साथ में बात कीजिए, क्योंकि वो दिन भर नाचते रहा, खेलते रहा, मेहनत नहीं किया, और लास्ट में उसने क्या किया, ही बेग फूड with the ant during the winter time. Okay, so this ant was very kind hearted, so he gave food to grasshopper. But some people, they are not like kind hearted ना. they say, वो कहेंगे कि you are enjoying the whole summer and you are very lazy, why should we offer you the food? Okay, now in your notebook list 3 things that you do on time and 3 things that you don't. आप अपना ईमानदारी से अपने नोटबुक में लिखिए कि आप 3 चीज़ लिखिए जो आप क्या करते हो, टाइम पर करते हो, और जो 3 चीज़ बोलो जो आप टाइम पर नहीं करते हो. ओके, यू मस्ट बी पंक्चुअल, यू मस्ट बी डू थिंग इन टाइम. ओके, पंक्चुअलिटी मीन्स डूइंग थिंग इन राइट टाइम. तो सभी को जो चीज़ें टाइम से करना चाहिए. Okay children, this is the lesson. Now we have come to the end of this lesson. Class 4, please listen this story again and again, and I have also solved all the question, and the question answer I'm going to give in your WhatsApp. Okay.